صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا. آنے والے اس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اللہ میں ہی ہوں، تمہارے درمیان ہم جو رسول بھیجے ہیں، جو پیغمبر بھیجے ہیں، وہ بھگوان نہیں ہے. ہم نے ان کو اپنے نور سے بھی پیدا نہیں کیا ہے. اے لوگوں، اسلام کے اندر آنا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے، قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک منشیہ ہوں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں، میرا مقام سب سے بڑا ہے، میرا درجہ سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ میرے پاس وحی آتی ہے. لیکن انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. دو آنکھیں تمہاری، دو آنکھیں میری، دو کان تمہارے، دو کان میرے، دو ہاتھ تمہارے، دو ہاتھ میرے، دو پیر تمہارے، دو پیر میرے. تم بھی چلتے ہو، ہم بھی چلتے ہیں، تم بھی سوتے ہو، ہم بھی سوتے ہیں، تم کھاتے پیتے ہو، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. تمہیں لیٹرین پیشاب پائخانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے. تمہیں شادی کی ضرورت ہے، ہم نے بھی کی ہے. تمہارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں. تمہارے باپ دادا ہیں، ہمارے بھی باپ دادا ہیں. انسان ہونے میں ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہنے کا حکم ہوا. آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں بھی بشر ہوں. بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان. میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بشر ہیں. لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے. رسول کو کہنے کا حکم ہوا ہے، وہ بھی بشر ہیں، تو ہم بھی کہیں گے رسول ہماری طرح بشر ہیں. میرے عزیز، تجھے یہ پوری تفصیل سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا رسول کو اپنی طرح بشر. رسول کو کیوں حکم ہوا کہ آپ کہتے ہیں بشر ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دو قومیں تو بگڑی تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی. ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں. یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی. عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، نبی بھی آئے ان کے پاس. لیکن یہ قومیں کیسے بگڑی؟ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں میں جب انہوں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے تو غلو کر گئے. غلو کا مطلب ہوتا ہے اوور کر دینا، کسی کے مرتبے کو بڑھا کر کے. حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی. وہ 100 سال تک سوتے رہے. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، 3 پارے میں، سورہ بقرہ ہی میں ہے. 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے. پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے. ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے. واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی. اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے. کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا. اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں. وہ اتنی پاکیزہ تھی. جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی. اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے کچھ معجزے بھی تھے. وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ، اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے. یہ قرآن پاک میں ہے. جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے.
उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद दोबारा उठे तो कौम ने कह दिया अल्लाह का बेटा है। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए गए और मिट्टी के परिंदों में फूंक मारते तो उड़ने लगते, तो ईसाइयों ने कह दिया वो अल्लाह के बेटे हैं। अब इधर मक्का मुकर्रमा में जो जलवा रसूल देखा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक आध हैरत अंगेज काम नहीं है, हर दिन एक मौजज़े का सुदूर है। कभी ये रसूल उंगली उठा करके इशारा करे चांद फट जाए, कभी वो बेजुबान जानवरों से कलाम करें, दरख्त उखड़ कर उनकी बारगाह में आ जाए। तो ये हैरत अंगेज काम जो रसूल पाक के साथ हो रहे थे, तो अब अरब के लोग पिछली कौमों की तरह बिगड़ ना जाएं और रसूल को ये ना कह दें कि ये खुदा उतर पड़ा है। अल्लाह ने फरमाया रसूल आप कह दें कि मैं बशर हूं। अल्लाह ने क्यों फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैं हबीब आप फरमा दे मैं बशर ही हूं, कि तुम धोखा ना खा जाना, मुझे खुदा मत समझ लेना। एक बात ये भी है, और दूसरी बात एक बहुत बड़े गुजरे हुए एक मुनाजरे का सबक भी था इसमें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का एक मुनाजरा हुआ था। नमरूद उस जमाने का जालिम और जाबिर बादशाह, जब उसने देखा कि इब्राहिम हमारे बुतों की पूजा भी नहीं करता और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत सारे मामलात थे, वो उनके बुतों को नहीं मानते थे, जो सितारों की पूजा करते उनकी नहीं मानते थे, जो चांद और सूरज को पूजते उनकी नहीं मानते थे। एक दिन बुलाया उसने दरबार में। अब ये जो मुनाजरा है वो भी कुरान पाक में आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम से उसने पूछा कि तुम किस खुदा को मानते हो, आखिर कौन है तेरा खुदा? काला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। कौन कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो झट से उस पागल ने कहा काला अना उहयी व उमीत, मैं भी लोगों को जिंदगी देता हूं मौत देता हूं, मेरे पास भी ये कंट्रोल है, तू मुझे खुदा मान ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कैसे? उसने अपने जेल में से 2 कैदी निकाले, एक को आजाद होना था, एक को फांसी की सजा होनी थी। तो उसने कहा देखो ये आजाद होने वाला है और ये फांसी पे चढ़ने वाला है, लेकिन जो मरने वाला था उसको आजाद कर दिया, कहा कि मैंने इसको जिंदगी बख्श दी, और जो आजाद होने वाला था उसका गला काट दिया, कहा मैं इसको मार दिया। मौत तो हयात मैं भी दे सकता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये निरा जाहिल है, मौत और हयात का मतलब इसने ये समझ लिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना जबरदस्त चैलेंज पेश किया जो कुरान में है। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सेकंड जो चैलेंज दिया, फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैं उस खुदा की इबादत करता हूं, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, सूरज को पूरब से ईस्ट से निकालता है। फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, अगर तू खुदा है तो इसको मगरिब से निकाल के दिखा, यानी वेस्ट से एक बार निकाल। चैलेंज तो देख रहे हैं आप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि जैसे मेरा खुदा रोज पूरब से सूरज निकालता है कल तू निकाल, तो कल सूरज निकलता तो यही कहता आज मैंने ही निकाला है। आज जो सूरज निकला है ईस्ट से, पूरब से, मशरिक से, वो मैंने ही निकाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपोजिट चैलेंज दिया कि खुदा जब मशरिक से निकाल सकता है तो खुदा मगरिब से निकालने पर भी कादिर है, सूरज उसके कंट्रोल में है। तू अगर खुदा है तो सूरज मगरिब से निकाल के दिखा, जहां सूरज जाके डूबता है वहां से तू एक दिन सूरज निकाल के दिखा। कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, ये काफिर वहां मबहूत हो गया, लाजवाब, खत्म हो गया मुनाजरा। ये कब हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। हाँ, अब इस मुनाजरे में जीत और फतह किसकी हुई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसकी हुई? इस चैलेंज का जवाब वो नहीं दे सका, लेकिन इस मुनाजरे से एक सबक ये निकला, एक नतीजा ये निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चैलेंज ये दिया था कि जो खुदा होगा वो मगरिब से सूरज निकालेगा, जो खुदा होगा वो मगरिब से सूरज निकालेगा। ये इस जमाने को 2000 साल बीत गए, और जब मदीना तैयबा के करीब में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए नमाज असर कज़ा हो रही थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को कहां से पलटाया? मगरिब से निकाला। सूरज डूब चुका था, सूरज को वापस इशारे से पलटाया। अब यहां पर वो वाला मुनाजरा फिर से ताजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो चैलेंज दिया था नमरूद को कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल। नमरूद तो नहीं निकाल के दिखा सका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल कर दिखा दिए हैं। तो अब किसी का अकीदा ये ना बिगड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जो सूरज मगरिब से निकालेगा वो खुदा होगा। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, कुल
इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ऐ रसूल आप फरमा दें ये धोखे में ना आए, मैं तुम्हारी तरह बशर ही हूँ, लेकिन मेरे अजीजों साथ में इतना याद रखना, आम बशर नहीं, वो नूरी बशर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर खुसूसी इनायात हैं। मैं मानता हूँ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। ये हमारा अकीदा है। अब ये नूर और बशर के जो मामलात हैं, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन पेश करते हैं, है नहीं कुछ, लेकिन मुझे जरूरत इस बात की है कि सुन्नियों को इन अकायद और इन मामूलात अहले सुन्नत को मैं वाज़ेह तरीके से बयान करके बताऊं। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने खालिस नूर ही कहा और बशर नहीं कहा, वो भी गुमराह है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशरियत का अगर किसी ने इनकार किया, वो भी काफिर हो जाएगा, गुमराह है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ वो आम बशर हैं, तो भी गुमराह है। आम बशर, आम इंसान कह रहे तो भी गुमराह है। तो कहना क्या चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि वो नूरी बशर हैं। नूरी बशर का मतलब ये होता है देखने में तो बशर दिखता है, लेकिन कुदरत में नूरी मखलूक से भी बढ़ करके है। फरिश्ते नूर हैं, इंसान बशर है। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, इंसान बशर है। अब रसूल को अगर तुमने सिर्फ नूर कहा तो फरिश्तों में चले जाएंगे, सिर्फ बशर कहा तो सिर्फ इंसानों में। रसूल मलाइका का भी रसूल है, इंसानों का भी रसूल है, इसलिए तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि वो नबी नूर वाले भी हैं और बशरियत भी उनके अंदर है। हमारा अकीदा यही है कि वो नूरी बशर हैं। क्या है? नूरी बशर हैं। मेरे अजीजों, अब जिन लोगों ने यह कहा कि रसूल हमारी ही तरह हैं, तो ये तो अकल में नहीं आती बात, अकल में नहीं आती। मैं किसी सादे से मुसलमान को भी उठा करके पूछूंगा, वो तौबा तौबा करेगा, कैसी बात कर रहे हो, रसूल हमारी तरह हो सकते हैं? उलमा की बात तो छोड़ो, मैं आम से बंदे को भी पूछूंगा, क्या तुम इस बात का अकीदा रखते हो कि रसूल हमारी तरह थे? कोई कह सकता है? हरगिज नहीं। हाँ, इस तरह का किन लोगों ने कहा था? दो ही शख्सियात हैं जिनका कुरान में जिक्र है, जिन्होंने रसूल को अपनी तरह कहा था। एक इब्लीस लईन है, शैतान मरदूद है, और दूसरे वो कुफार और मुशरिकीन है जो नबियों को कहते थे, कुरान में है कि ये कैसे रसूल हैं, बाजारों में खाते पीते हैं, हमारी तरह बाजार करते हैं, उठते बैठते हैं, ये कैसे रसूल हैं, ये तो हमारी तरह है। तो काफिरों ने रसूल को अपनी तरह कहा था, या फिर दूसरा कौन? शैतान ने कहा था। अब अगर कोई भी कह रहा हो, इन्हीं दो कैटेगरी में से होगा, इन्हीं दो कैटेगरी में से, या तो शैतान के ये औलाद में से होंगे, वारिसीन में से होंगे, जानशीन होंगे, या सज्जादा नशीन होंगे, या तो फिर कुफारो मुशरिकीन के दलाल होंगे, एजेंट होंगे। कुरान में दो ही लोगों का जिक्र कि नबी को अपनी तरह कहने वाले कुफारो मुशरिकीन थे और इब्लीस लईन। शैतान ने क्या कहा था जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया? उसने कहा था मुझे तो आग से बनाया गया, इनको मिट्टी से, कैसे ये बराबर हो सकता है? मैं सजदा करूं, ये नहीं हो सकता। बल्कि उसने बराबर क्या, अपने आप को उनसे भी बड़ा समझा। जैसे आज लोगों ने कहा है ना, किताबों में लिखा है उम्मती अमल करते करते कभी नबी से भी बढ़ जाता है। शैतान ने यही कहा था कि मुझे आग से पैदा किया है, मैं आदम से बढ़ गया हूं, ये मिट्टी से है। अजीजा ने गिरामी वखार, इस तरह के जुमलों से एहतिराज करो, परहेज करो, इस तरह के डिबेट में जाओ भी मत। तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आज नहीं हो, उनकी जाहिरी जिंदगी में नहीं हो कि तुम उनके बारे में फैसले लेते रहोगे कि वो सिर्फ नूर थे, कि सिर्फ बशर थे, आम बशर थे, या क्या थे। ये तमाम डिस्कशन न करो। कुरान ने हमें जितना कहा है उस पर अमल करो। कुरान ने हमें ये कहा वो बशर तो है लेकिन आम बशर नहीं, आम बशर नहीं। यहाँ कोई भी ये ना कहे। बाज एक साहब ने कहा था, क्या रसूल के दो कान नहीं थे? रसूल की तो आंखें नहीं थी, रसूल की एक नाक नहीं थी, रसूल के दो पांव दो हाथ नहीं थे, फिर आप अलग क्यों कहते हैं? एक साहब ने ये भी ऐसे ही मार दिया उन्होंने बराबरी के लिए। जब उन पर सख्त गिरफ्त की जाने लगी तो कहे वो भी तो इंसान ही थे ना, उनकी दो आंखें थी, दो कान थे। मेरे अजीज, अगर ऐसे ही बराबरी का मामला रहे तो सूअर के भी दो कान हैं, तेरे भी दो कान हैं, कुत्ते की भी दो आंखें हैं, तेरी भी दो आंखें हैं। क्या मैंने कभी कहा कि तू देखने में कुत्ते की तरह दिखता है? मैंने नहीं कहा। बराबरी के ये उसूल नहीं होते। दो कान होना बराबरी की जरूर मेयार नहीं है, दो आंख हो जाना ये बराबरी का मेयार नहीं है। जरा तुम अपने गिरेबान में झांक करके देखो, जो रसूल को अपनी तरह बशर कहे, क्या जिंदगी में कभी तुम्हारे पास जिब्राइल आया है?